पॉपुलेशन के हिसाब से अगर देखें, यानी कि 1000 लोगों के बीच में इतने डॉक्टर्स होने चाहिए, तो वो डॉक्टर्स अभी इंडिया के पूरे पॉपुलेशन में हम काउंट करें तो वो नहीं है। देखें तो चाइना में भी हमारे स्टूडेंट जाते हैं, रशिया में भी वही एमबीबीएस करने जाते हैं हर साल। यहाँ तो सिर्फ हम 18,000 स्टूडेंट की बात करें सिर्फ यूक्रेन के, लेकिन रशिया कहाँ गया, चाइना कहाँ गया, फिलीपींस कहाँ गया। That there was a computer science student in Baroda who was given an offer of 3,000 rupees a month. Today, the guy is owning $20 million worth of house in Houston. पूरा पैसा हम यहाँ से बाहर भेज रहे हैं, वहाँ 15 से लेकर 25 लाख तक हो जाता है। वो अच्छा है, सस्ते में होता है, तो उसका ऑप्शन हमें इंडिया में ढूंढना चाहिए, ऑल्टरनेट। All right, ladies and gentlemen, welcome back to another episode of the Fact Flashes Talk of the Town. Now today, the point that we're going to discuss or talk about is a very crucial and a vital one. Now, more than 7,000 Indian students have come back to India after 9 days of the war that's happening between Ukraine and Russia. Now, this war that is happening has brought in a lot of questions, not internationally but also nationally. Including the Prime Minister to the Union Ministers, Cabinet Ministers, everyone is talking or raising a same question, which is that why do Indian students go to these countries, or why is there so much brain drain in India? Now, when we talk about Ukraine in particular, medical students or students who want to study medicine go to Ukraine. I have been joined by two doctors. We have been joined by one student who's come back from Ukraine this morning in Delhi, and we've been joined by Niketan Sir. Over the next few minutes, we'll be talking about how this entire situation looks like, why is there a brain drain when it comes to India, and why is it that India lacks having colleges, medicine colleges in the country. Thank you so much everyone for being here with us. So we'll start with you. As we know that, like I said, more than 7,000 students have already come back to India, and yet India is being diplomatic. Do you have a take on that before we go further? See, I think I'll put it this way, that war itself is bad. There are no victories in the war. War is a very sad feature. A lot of people suffer because of war. Unfortunately, Indian students have been caught on the wrong side. Right? There is a Russian invasion of Ukraine. It's an expansionist attitude of Russia. Diplomatically, we are neutral. We are neither with Ukraine, neither with Russia. But let's put it this way, that we are neutral because we think that Russia supported us in many ways. But that was 1971, that Russian leadership was completely different. It was a very committed leadership of Brezhnev, Kosygin, Shevardnadze and all of them. Right? Here the thing is that a big country is invading Ukraine, a small country. We can never justify that. One can never justify that. We invaded Bangladesh because Bangladesh was going through an independence struggle. So we were just helping those guys with the independence. Ukraine doesn't want to be with Russia. 74% of Ukraine voted against Russia. So there is no question of Ukraine being there. They are fighting valiantly, a superpower, very bravely. And I think probably Indian government will have to use its leverage to bring both the sides together and stop the war. At this moment, the priority is stop the war, so that students, working people from India, from Philippines, from Greece, from so many countries, who are there, from Middle East, do not get affected by this war. It's a very sad war. Now, we also have Saurabh with us, and Saurabh has just got back from Ukraine this morning, and he was also in the capital of Ukraine where the war is happening currently. Saurabh, you just got back. What does the entire scene look like? So, जब मैं वापस आया तब I was happy, but मेरे साथ 2000 स्टूडेंट्स थे. मेरे साथ 2000 स्टूडेंट थे, तो हम सब साथ में ही निकले 28 रात को. एंड फर्स्ट को मैं पोलैंड एम्बेसी इंडिया में था, तो वो लोग ने काफ़ी हेल्प की. वो लोग ने फ़्लाइट टिकट्स बुक की,
उसके बाद वो लोग ने भेजा। उस जिस दिन मैं आया उस दिन मेरे साथ C-17 रोमेनिया से लॉन्च हुआ था। मैं पोलैंड बॉर्डर से निकला था। 23rd को जब स्टार्ट हुआ तब हमारे सिटी में कुछ भी नहीं था, बट ऑन 24th मैं जहाँ रहता हूँ उधर से 600 मीटर्स या 700 मीटर्स पे मैंने गन शॉट फायर्स सुने। सो मेरे साथ लाइक दूसरे 25 to 30 इंडियंस थे। सो हम लोग ने डिसाइड किया, फर्स्ट एम्बेसी को कॉल किया, तो एम्बेसी ने बोला कि आप अपने बंकर्स में रहो, बट हमको सेफ फील नहीं हुआ कि कब तक बंकर्स में रहेंगे। तो हम लोग 24th को खुद ही निकल गए। तो 24th को निकलने के बाद उस दिन रात शाम को ही हमको एक ट्रेन प्रोबेबिलिटी मिल गई जो लवीव करके एक जगह है यूक्रेन में 600 किलोमीटर्स दूर, और वो पोलैंड के बॉर्डर के पास है, तो उधर जाती है। तो उधर गए हम लोग। उधर जाने के बाद पता चला कि पोलैंड बॉर्डर पे कोई लेके नहीं जा रहा है, बट समाउ टैक्सी मिली, वो भी हमें को 20 किलोमीटर्स ले गई। तो उसके बाद हमको 45 किलोमीटर्स लाइक चल के जाना पड़ा। तो पूरा दिन निकल गया, रात को हम लोग पहुँचे। फिर उसी दिन रात को हमें वही चीज़ पता चली कि यूक्रेन मिलिट्री और एम्बेसी पीपल, जो भी बोल सकते हो आप, वो लोग बोल रहे हैं कि इंडियंस को अफ़गानिस्तान, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, नेपाली, आप सबको पोलैंड वीज़ा नहीं दे रही है। दे अनाउंसेड दैट टू अस। सो वी वर लाइक कि कैसे होगा, क्या होगा। देन हम सब के फ़ोन में इतनी बैटरी भी नहीं थी, तो फर्स्ट थिंग मैंने मेरे डैड को कांटेक्ट किया इधर कि डैड ये सिचुएशन है और मैं इधर एम्बेसी में कॉल करके फुल एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाऊँगा, आप एक बार इतना मैं जो बता रहा हूँ वो बता दीजिए इधर कहीं। तो मेरे डैड ने MP रंजन भट्ट है इधर, उनसे बात किया। उन्होंने फिर कुछ पता नहीं क्या बात किया है, बट 1-2 दिन बाद नेक्स्ट डे दे स्टार्टेड अलाउड टू पीपल टू गो लिटल एंड देन ऑन 28th लाइक दे अलाउड ऑल इंडियंस टू गो one by one. Saurav, what were you doing there? Were you studying? I was not studying, I was working in a restaurant. I used to handle to take orders and manage all the restaurant over there. Why did you go there? Actually, the boss needed an Indian person over there in there. It's an Indian restaurant, so the Ukrainian person not able to guide the Ukrainian people. How is the food? How is the quality we provide? So he wanted. So I went over there. So I was doing the job like from 6 months, and it was good going. But then this situation happened and all. Why did you not choose to stay in India? I find a nice growth over there. That's why. Can you just put the mic closer and tell us? I find it a nice growth over there. That's why. You found out that Ukraine would give you a better opportunity than India would. That's why I went over there. All right. So we have two doctors with us. We have Dr. Nilesh and we have Dr. Siddharth. Siddharth, you have studied in a government college over here. You've studied medicine. So it is said that, like the Honorable Prime Minister also said, that why is it that India does not have as many medicine colleges, so that the people have to go to other countries to study medicine. In India, medicine is more expensive. Studying medicine is more expensive in private colleges than studying in Ukraine, which is a major reason why students fly there. What do you have to say? सबसे पहले तो मैं ये बात बताना चाहूँगा कि आपका जो पहला सवाल था कि इंडिया के अंदर डॉक्टर की कमी है, ये बात सही है कि इंडिया के अंदर डॉक्टर की कमी है, लेकिन अगर हम देखें तो जो सिटी एरिया है वहाँ सभी जगह पर अभी जहाँ पर भी आप जाओगे वहाँ पर आपको हॉस्पिटल या फिर क्लिनिक या फिर बड़े बड़े सुपर स्पेशलिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल आपको देखने के लिए मिलेंगे। अभी जो भी डॉक्टर्स हैं अब उनका है ना एक सिनेरियो रहता है कि हमें थोड़ी बेटर लाइफ चाहिए, तो लाइफस्टाइल थोड़ी अलग चाहिए। इसकी वजह से वो लोग सिटी में थोड़ा रहना पसंद करते हैं, जिसकी वजह से अभी पॉपुलेशन के हिसाब से अगर देखें यानी कि 1000 लोगों के बीच में इतने डॉक्टर्स होने चाहिए, तो वो डॉक्टर्स अभी इंडिया के पूरे पॉपुलेशन में हम काउंट करें तो वो नहीं है। लेकिन अगर हम सिटी के पॉपुलेशन के हिसाब से अगर काउंट करें तो वो थोड़े ज़्यादा डॉक्टर्स है सिटी में। अगर हम गांव की ओर जाए तो गांव के अंदर डॉक्टर्स नहीं है। और जो आपने दूसरा सवाल पूछा कि मेडिसिन जो है अभी पढ़ने के लिए बहुत एक्सपेंसिव हो गई है, तो इसका मैं आपको आंसर देना चाहूँगा कि अभी अगर आप देखें तो ओनली मेडिसिन नहीं, अभी पूरा जो एजुकेशन सिस्टम है वो पूरा प्राइवेटाइजेशन थोड़ा हो चुका है।
जिसकी वजह से सिर्फ मेडिसिन फील्ड ही नहीं, इंजीनियरिंग फील्ड हो या फिर कोई भी टीचिंग फील्ड हो, आर्ट्स फील्ड हो, कॉमर्स फील्ड हो, सभी जगह पर अभी प्राइवेटाइजेशन हो रहा है और इसकी वजह से सभी जगह एक्सपेंसिव हो रही है। जो लोग बाहर पढ़ने जाते हैं इंडिया के बाहर, मेडिसिन, सर्जरी या फिर MBBS जो भी कोर्स हो, वो इसलिए जाते हैं ताकि उनको यहाँ पर एडमिशन नहीं मिल पाता। क्यों एडमिशन नहीं मिल पाता? क्योंकि यहाँ पर सीट्स बहुत कम है, बहुत कम सीट अवेलेबल है पूरे इंडिया के अंदर। अगर हम देखे जाए तो अगर एक अच्छी बात है कि हमें पूरे गुजरात के अंदर जितनी होम्योपैथी, आयुर्वेद, MBBS और डेंटल कॉलेजेस है, यानी कि मेडिकल और पैरामेडिकल कॉलेजेस, उतनी पूरे अगर साउथ में आप देखें तो पूरे साउथ के 2 या 3 स्टेट को मिला के उतनी कॉलेजेस से पूरे गुजरात के अंदर ही है। और उसका अगर एक आपको मैं एक एग्जांपल दूँ तो यानी कि कहीं पर बहुत सारी सीट्स है मेडिसिन के लिए, कहीं पर बहुत कम सीट है, तो उसके लिए गवर्नमेंट को थोड़ा ट्राई करना चाहिए। और जिन लोगों को यहाँ पर एडमिशन नहीं मिल पाता है और जिनको डॉक्टर बनना ही है, तो वो लोग हमारे देश को छोड़ के बाहर जा रहे हैं। और अगर एक बार बाहर गए तो उनको ऐसा लगता है कि हम बाहर आए हैं तो अगर हमने यहाँ पर 6 साल पढ़ाई की है, हम यहाँ पर 6 साल अच्छी तरह से रहे और यहाँ पर हमारा थोड़ा ग्रोथ हो सकता है। और उसको अभी मैं अगर आपको एक माइनस पॉइंट बताना चाहूँ तो ये माइनस पॉइंट ये है कि इंडिया के अंदर जो इन्होंने बोला कि वहाँ पर ग्रोथ ज़्यादा था यूक्रेन के अंदर, तो यूक्रेन के अंदर ग्रोथ ज़्यादा है, लेकिन अगर आप देखें तो यूक्रेन जो है वो सेकंड लार्जेस्ट एरिया के हिसाब से कंट्री है पूरे यूरोप के अंदर। और रशिया के बाद अगर आता है तो यूक्रेन आता है सेकंड लार्जेस्ट कंट्री एरिया के हिसाब से। और अगर वहाँ के अगर पॉपुलेशन आप देखें तो वो कम है, और इंडिया की अगर आप पॉपुलेशन देखें तो वो बहुत ज़्यादा है। और उस पॉपुलेशन के हिसाब से अगर आप देखें तो किसी भी चीज़ को ग्रोथ करने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। तो आई थिंक इंडिया को ग्रोथ करने में अभी और ज़्यादा टाइम लगेगा और इसकी वजह से लोगों को अभी यानी कि जो यंगस्टर्स है उनको थोड़ा स्पीड ग्रोथ चाहिए, इसकी वजह से वो लोग इंडिया को छोड़ के अभी बाहर जा रहे हैं। नीलेश जी, आप प्राइवेट हॉस्पिटल में से पढ़े हैं, राइट? राइट, प्राइवेट में से अपना किया है। जी जी जी। तो आप इस बात से एग्री करेंगे कि जितना यहाँ पे इट इज़ एक अप्रॉक्सीमेट सर्वे किया गया था जिसमें यहाँ पे सस्ता से सस्ता जो द चीपेस्ट फीस दैट इज देयर, द लोएस्ट फीस is approximately 1 to 1.5 crores in private colleges, right? And on the contrary, when you go to Ukraine, it starts with 25 lakhs. So it gets more easier for anyone to be able to afford it. मैं एक बार कहना चाहूँगा 25 लाख नहीं, वहाँ 15 लाख से स्टार्ट होता है। देर आर मैनी 45 मोर देन 45 यूनिवर्सिटी, मेडिकल यूनिवर्सिटी यूक्रेन के अंदर। लेकिन सिर्फ ये इश्यू यूक्रेन का नहीं है, अगर हम देखें तो चाइना में भी हमारे स्टूडेंट जाते हैं, रशिया में भी वही MBBS करने जाते हैं हर साल। यहाँ तो सिर्फ हम 18,000 स्टूडेंट की बात करें सिर्फ यूक्रेन के, लेकिन रशिया कहाँ गया, चाइना कहाँ गया, फिलीपींस कहाँ गया। जिसको नहीं एडमिशन मिलता है वो लास्ट ऑप्शन चूज़ करते हैं, नेपाल में भी पढ़ने जाते हैं, MBBS करने नेपाल में भी जाते हैं। जिसकी वो डिग्री की यहाँ कोई वैल्यू नहीं है, एक तरीके से देखे जाए तो उसकी कोई वैल्यू, क्योंकि वहाँ से जो क्लियर करके आते हैं उनका कल्चर और जो बैकग्राउंड होता है और जो डिजीज़ होते हैं यहाँ से वहाँ बहुत डिफरेंट होते हैं। जो डिजीज़ इंडिया में कॉमनली दिखे जाते हैं वहाँ पे नहीं होते हैं। तो वो जो पढ़ के आते हैं उनके बाद उनको यहाँ पे MCI क्लियर करना पड़ता है। MCI काफ़ी डॉक्टर नहीं क्लियर कर पाते, 4-4, 5-5 साल निकल जाते हैं, फिर भी वो लोग MCI नहीं क्लियर कर पाते। फिर प्राइवेट मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में जाके वो लोग जॉब करते हैं 30,000 में। डॉक्टर्स ये दिखाते हैं मल्टी स्पेशलिटी में कि वो एक MBBS है, लेकिन वो MBBS है लेकिन यहाँ पे वो एलिजिबल नहीं है। लेकिन उनकी हॉस्पिटल चलाने के लिए वो लोग ऐसे डॉक्टर्स रखते हैं जो यूक्रेन से, रसिया से वापस आते हैं। तो हम अपना पैसा तो बाहर, हमारी इकोनॉमी तो ड्रेन करवा ही रहे हैं बाहर, पूरा पैसा हम यहाँ से बाहर भेज रहे हैं। वहाँ 15 से लेकर 25 लाख तक हो जाता है, वो अच्छा है, सस्ते में होता है। तो उसका ऑप्शन हमें इंडिया में ढूंढना चाहिए, ऑल्टरनेट। गवर्नमेंट को वो स्टेप लेना चाहिए। और ये आज से नहीं हो रहा है, ये तो अभी ये कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया रसिया और यूक्रेन का, इसके लिए। बाकी ये स्टूडेंट तो 10, 15, 20 साल से जा रहे हैं वहाँ पढ़ने के लिए। तो मतलब प्रॉब्लम आज से नहीं है, प्रॉब्लम काफ़ी सालों से इंडिया में। तो उसका सॉल्यूशन, अब हम बात करें डिजिटल इंडिया की, तो इंडिया इतना फास्ट हो गया तो हमें कॉलेजेस भी उतने बढ़ाने चाहिए। डॉक्टर्स हमारे पास कम है तो उतने डॉक्टर्स भी आने चाहिए। तो ऐसा क्यों नहीं होता है? ऐसा इसीलिए नहीं होता है, यहाँ पे मेडिकल माफिया ज़्यादा है। उसको अलग टर्म में बोला जाए तो एजुकेशनल माफिया। कोई भी फील्ड में चले जाओ, इधर इंजीनियरिंग हो, मेडिकल हो, कोई भी हो, यहाँ पे भी 25 लाख में MBBS होता है। लेकिन वो 25 लाख में करने के लिए हमको 1 करोड़ से लेकर 1.5 करोड़ सिर्फ डोनेशन देना पड़ता है इन द नेम ऑफ ट्रस्ट। ट्रस्ट के नाम पे हमको 1 करोड़ 2 करोड़ हम दे देते हैं। ये तो सिर्फ MBBS की बात है। अगर हम मास्टर्स में जाते हैं वहाँ 5 करोड़ से स्टार्ट होता है पैकेजेस, सिर्फ डोनेशन। Right. All right. Niketan sir,
you are someone who knows the international affairs very well. He said that students go to China also, they go to Nepal also at the end, they go to several other countries that are cheaper than India. Not just medicine but any other course. What is your take? My take is very simple. It's the economics which works everywhere. Why do people go to USA? Why do people go to England, Australia, New Zealand, Canada, right? Now even Europe. See, it's the economics which works. What are we giving to the students who have graduated in India, post-graduated in India, whether in commerce, whether in arts, whether in management? What are we giving? End of the day, nothing. I'll give an example that there was a computer science student in Baroda who was given an offer of 3,000 rupees a month. Today, the guy is owning $20 million worth of house in Houston, right? Now, where you are not, I mean, you are not giving anything to the students, nothing, right? Except for those IITs and IIMs and all who are getting a fat package. The rest of things are already ignored. Second, India has nothing to offer on skills. This is degrees. The second part of education is skills. For example, this gentleman went to work in a restaurant in Ukraine, right? There are many restaurants in Vadodara also, in Bombay also, in Pune also, in Chennai also, in Delhi also. But why people are not preferring? Why they prefer to go to Ukraine or England or France or anywhere? Again, economics works. Right? What do we pay our chefs? What do we pay our waiters? What do we pay our housekeeping staff? Nothing compared to it. So you have a big drain, even going to Dubai. Even going to Dubai, right? So this will, unless you change your economy and unless you bring the economy to the ground level, trickle-down theory works that the benefits of the economy goes to the poorest of the poor. This drain will continue. You can't stop it. Saurabh, how many other people like you who are not studying but are rather over there on work visa? Percentage wise, approximately. Approximately, I can tell you maybe 20 to 30% people are there who are working over there. Not like in restaurant. They are doing food delivery jobs, taxis, many other little things. But they are earning like more. If you count in Indian currency, they are earning like lakh rupees per month. So why they will think to come India? That's the point. And Ukraine is like cheapest city to live. Like your expenses like in Indian currency, it's 12 to 13,000 rupees a month. So it's a benefit for an Indian person to stay. So that's why people are working over there. And around in which restaurant I used to work, he's also an Indian owner. So he's hiring now Indians only. Only one Russian manager is there who is handling some of the customers. Other customers all are handled by Indians only. So that's the way people are going more India. My next question is to all of you. This is the last question. Prime Minister Narendra Modi, in a latest statement, said that this reason why we don't have enough medical colleges in India, the previous government, which is the Congress government, they didn't do enough efforts to make sure that we have ample amount of medicine colleges. We'll start with Siddharth. अगर मैं ये बात बताना चाहूँ तो ये आपने बहुत ही पॉलिटिकल मुद्दा अपने क्वेश्चन पूछा है कि अगर डॉक्टर के हिसाब से अगर आपको बताऊँ तो जो आज से मैं 25 साल का हूँ, 25 साल के पहले की जो सिचुएशन थी और अगर मैंने जो मेडिसिन की जब पढ़ाई शुरू की थी आज से 6 साल पहले, तो तब की जब मैं सिचुएशन बताऊँ तो तब पूरा का पूरा सिनेरियो क्या चल रहा था कि अगर आप किसी को भी अगर पूछो यानी कि किसी साइंस वाले को, तो वो सभी लोग ए ग्रुप में ज़्यादा जाते थे, यानी कि इंजीनियर्स ज़्यादा बनते थे। तो तब क्या हुआ कि सभी लोग इंजीनियर्स बनने लगे और धीरे धीरे इतने लोग इंजीनियर्स बनने लगे कि अब तो इंजीनियर्स अभी 5,000 रुपये इसमें भी अगर आप हायर कर सकते हैं। उसके बाद धीरे धीरे सिनेरियो चेंज हुआ, सभी लोग मेडिकल की ओर चले। अभी क्या हुआ कि सभी लोग मेडिकल में इतने जा रहे हैं कि अगर हम देखें तो 6 साल पहले जब मेरा एडमिशन हुआ तब गुजरात के अंदर ओनली 2,400 सीट्स थी आई थिंक MBBS की,
और अभी अगर आप देखें तो अभी पूरे गुजरात के अंदर 5200 सीट्स है, यानी कि 6 साल के अंदर इतनी सीट्स बढ़ी। जिस तरह से सीट्स बढ़ी है उस तरह से उनकी जो फीस है वो भी बढ़ी है। और जिस तरह से अभी तो अगर आप एक तरह से देखें तो ऐसा मान लीजिए कि जो गवर्नमेंट कॉलेजेस है पूरे गुजरात में 6 गवर्नमेंट कॉलेज है MBBS के लिए, और 9 ग्रांटेड एड GMRS कॉलेज है, और अदर प्राइवेट कॉलेज। तो अगर आप सबकी बात देखें तो जिनके पास पैसा है वो लोग सभी प्राइवेट कॉलेजेस में पढ़ते हैं। अगर आप देखें तो 12th के बाद अगर आपको प्राइवेट कॉलेज में MBBS करना है तो आप वहाँ पर डायरेक्ट डोनेशन दे के अगर आप एडमिशन ले सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर मैनेजमेंट कोटा भी होता है, और मैनेजमेंट कोटा जो होता है वो पूरा वो जो इंस्टीट्यूट है उसके अंडर में आता है। तो इस तरह से अगर आप देखें तो गवर्नमेंट का क्या है कि अगर ये गवर्नमेंट अभी आई है, उसके बाद अगर शायद थोड़े साल बाद कोई दूसरी गवर्नमेंट चेंज होगी, उसके बाद दूसरी गवर्नमेंट चेंज होगी, तो लोग क्या है कि अपने ऊपर का दूसरे ऊपर पे डालते हैं, दूसरा दूसरे ऊपर डालता है। तो अगर हम ये पॉलिटिकल मुद्दे की बात करें तो ये मुद्दा कभी भी सॉल्व नहीं होगा। यानी कि अगर ये दूसरे बोलेंगे कि ये जो पिछले 70 साल की गवर्नमेंट थी उन्होंने ये नहीं किया, तो अभी हमारे पास इतने साल से अगर आपकी ये गवर्नमेंट है तो आपने क्या किया ये आपको काउंट करवाना पड़ेगा। अगर उन्होंने बोला कि 17 साल में उस गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया तो उस गवर्नमेंट को भी एक बार काउंट करवाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर इंडिया के अंदर अगर मैं बोलूँ तो सबसे मेन जो महत्वपूर्ण एक मुद्दा है वो ये है कि अगर आप कोई भी चीज़ करो, अगर उसके लिए अगर आप अवेयरनेस नहीं जगाओगे लोगों में, तो अगर आप वो सही भी चीज़ करोगे तो वो चीज़ भी गलत ही रहेगी। जब तक आप लोगों को समझाएंगे नहीं, जब तक आप लोगों में अवेयरनेस नहीं लेंगे, तब तक वो चीज़ गलत ही रहेगी। तो अगर मैं देखा जाए तो किसी के ऊपर उंगली उठाने का सवाल नहीं है। अभी आप लीडरशिप में, आप पावर में, आप क्या कर सकते हैं, आप जितने टाइम लीडरशिप में थे आपने क्या किया, और आप अपना जो यूथ है कि कहा जाता है कि पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा यूथ इंडिया के पास है। देर वॉज वन गुड इंसिडेंट विद बिल गेट्स। बिल गेट्स जब इंटरव्यू दे रहे थे तब उनको पूछा था किसी मीडिया वाले ने कि आप सबसे ज़्यादा इंजीनियर्स है वो इंडिया में से क्यों हायर कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट में। तब उन्होंने बहुत ही अच्छा जवाब दिया था कि अगर मैंने इंडिया में से इंजीनियर्स नहीं हायर किए तो इंडिया के अंदर दूसरा माइक्रोसॉफ्ट बन जाएगा पूरा। तो अगर आप सोच सकते हैं कि अगर बिल गेट्स ये सोच रहा है, यानी कि वो उसका इतने साल का एक्सपीरियंस है, ही वॉज अ वेरी बिग पर्सन, तो आप सोचिए कि इंडिया के अंदर कितना यूथ है और वो क्या नहीं कर सकता है। आप देखिए सभी बड़ी बड़ी जगहों पर सभी इंडियंस ही है। तो मैं अगर आपको बताना चाहूँ तो सबसे मेरा तो यही एक आसान सा जवाब है कि आप अभी पावर में है तो आप काम कीजिए, आप जो काम करें वो आप लोगों को तक पहुंचाइए कि हमने ये किया है, और आप सबसे मेन फोकस यूथ पर करो कि जब तक यूथ नहीं आगे बढ़ेगा तब तक देश नहीं आगे बढ़ेगा, चाहे वो कोई भी कंट्री हो, रशिया हो, यूक्रेन हो, या इंडिया हो, या USA। Very true. So, the blame game. See, I look at it as education should be seen as an investment. And it is for the government to make maximum investment. Because if the government makes maximum investment, the cost of education comes down. And when the cost of education will come down, obviously people will study. You know. Second is creating opportunities for the educated. People should also look at that, what will I get when I finish this degree? Something lucrative. And you have to invest very heavily in what you call it in people. Invest in the students, invest in the people, let them mature up, you know. Not only invest in studies, but invest in their games, in their sports. You see, we have to, maybe we are criticizing Russia. I am no great fan of Russia or China, that for that matter. But you look at the way they perform in Olympics. We are happy with 6 medals. They are not happy with 100 medals. Right? So you have to invest in people, let the youth become strong, invest money instead of wasting money elsewhere, invest in people, invest in the students, invest in the youths, and then you see what happens. You know, automatically opportunities will go and all that. And India is very lucky, you have very good philanthropists, right? People who are ready to give money for free. For example, the Tatas. Hundreds of crores of rupees are given in charity every year. Right? So I guess we have to channelize our efforts, and instead of comparing ourselves with the previous government and the new government and what is going to be the future, let's begin the day today. That yes, now onwards we are going to do something great.
If you talk about education, see, I'll tell you the fact thing. I have studied only 12th. I dropped my BCom in first year only. But still, I think people should study. I didn't like to study, but I was good in skill about cooking, and I like to be in a hospitality thing. So I go in that. But nowadays, like educations are like people are not studying more. They are not. You are. बच्चे पढ़ नहीं रहे, वो घूमने चले जाते हैं, यहीं निकल जाते हैं. लाइक अगर फॉरेन में भी वो पढ़ने जाते हैं तो कोई पढ़ता नहीं है. 4 साल 5 साल तक वही कोर्स में घुसे रहते हैं. उसके बाद वो लोग बोलते हैं कि हमको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली. तो अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, उससे ज़्यादा तो मैं कुछ भी मैं लास्ट में इतना ही कहूँगा कि गवर्नमेंट कोई भी हो, सभी ने अच्छा काम किया ही है, लेकिन सबके कोई ना कोई ड्रॉबैक तो रहते ही है. ओके, जैसे अंकल ने कहा वैसे चाइना भी अच्छा है, रसिया भी अच्छा है, इंडिया भी अच्छा है. बस हम अपने यूथ का यूटिलाइज़ नहीं कर सकते हैं अच्छी तरह से, क्योंकि हमारे यहाँ कोई स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइज किया हुआ नहीं है. पूरा एजुकेशन सिस्टम सब अपनी अपनी तरीके से चल रहा है, क्योंकि मिनिस्टर हर बार चेंज हो जाता है. यहाँ एजुकेशन मिनिस्टर ही पढ़ा लिखा नहीं होता है. द मेन ड्रॉबैक इज एजुकेशन मिनिस्टर इज नॉट लिटरेट. Right. All right. Thank you so much for being here with us this evening. And so, as you just heard our conversation or discussion on this particular topic, you now know how important it is for India to make sure that we have enough of not just medicine or medical colleges, but enough of colleges that would provide education to students at an affordable rate so that India studies. So with this and a lot more that you need to know, make sure that you keep watching The Fact Flash. Thank you.